Good morning, children. Today we are going to start the second revision of chapter second of economics, the comparing the different sectors of Indian economy. In this section, we'll discuss how the three sectors, the primary sector, the secondary sector, and the tertiary sector, are compared. Now, it is very much important to understand the interrelationship between each sector. As we have discussed, in primary sector, we get raw materials and we exploit the existing natural resources. In secondary sector, the processing is being done. The raw material that we get from the primary sector, it is further being processed and made presentable. In the third sector, the tertiary sector, it provides various types of services to the primary sector and the secondary sector, and thus it is helpful in contributing the development of first and second sector, that is the primary sector and the manufacturing sector, or the secondary sector or the processing sector. In the third state, we perform, in this sector, the various types of services are being performed by the individuals, like the transporters, like the teachers, like the doctors, like the engineers, like the advocates, or professional like barbers, washermen, cobblers, etc. So in all these three sectors, large number of people are involved, and their main aim is to earn profit, increase their income, and with increase in income they wanted to improve their living standard too. जो हिस्ट्रीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, वो हमें क्या बताती हैं? जो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, इट स्टार्ट फ्रॉम ए प्राइमरी सेक्टर, एंड दिस सेक्टर, दैट इज वाई प्राइमरी सेक्टर इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. Maximum economic activities are performed by in this sector only. It produces the raw materials for various industries like sugar industry, like cotton industry, like food processing industry, and various other industries also produces the machines, tools, equipments like threshers, like tractors, like you can say insecticides, pesticides, chemical fertilizers. So here thus we can say कि both this primary sector and secondary sector are interdependent, because primary sector is producing and raw material. Primary sector is demanding the tools and equipments like borewell pumps, like tractors, like threshers, like crushers, like combiners, etc. In the third sector we find कि द थर्ड सेक्टर को कि हम सर्विस सेक्टर या टेरिटरी सेक्टर कहते हैं, ये इन दोनों के डेवलपमेंट में काम आता है. या टेरिटरी सेक्टर ना हो या सर्विस प्रोवाइडर्स ना हो, तो ना तो रॉ मटेरियल्स तो को इंडस्ट्रीज तक ले जा सकता है, और ना ही इवन इंडस्ट्रीज से रॉ मटेरियल को मार्केट में भी नहीं ले जाया जा सकता. जो एक्सपेंशन है फैक्ट्रीज का, जो जब से एक्सपेंशन शुरू हुआ, पर्टिकुलरली 1973 से टेरिटरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत तेजी से बढ़ी है. वैसे तो डेवलपमेंट का प्रोसेस 1950 से शुरू हो गया था, जब से हम रिपब्लिक बने थे. ठीक है, 1951 में प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया. प्लानिंग कमीशन में गवर्नमेंट का मेन मोटिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि टू डेवलप दी ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, clear, and to increase the overall production and employment. Now when the manufacturing sector enhanced, at the same time agriculture sector also enhanced, so large number of agro based industries they turned up. Agro based industries are defined as those type of industries which are dependent upon agriculture sector for their raw materials. Clear? Now even the entrepreneur, the industrialist who has installed these industries, जिसने ये इंडस्ट्रीज लगाई हैं, डेवलप की हैं, वो खुद भी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करता है. वो उसको प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, उसको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसको इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, उसको टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है.
उसको लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी इज चेंजिंग एंड पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट्स। व्हेन दे फाइंड एन एम्प्लॉयमेंट दे टर्न बैक टू द अर्बन एरिया फ्रॉम द रूरल एरिया इन सर्च ऑफ ए जॉब। है क्लियर? पिछले 100 सालों में, ठीक है, हमने ये देखा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से डेवलप्ड कंट्रीज में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो ये बढ़ी ही है, साथ ही साथ टेरिटरी सेक्टर की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और 1988 के बाद तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज टेरिटरी सेक्टर में आई, जैसे कि सर्विसेज ऑफ बैंकर्स, सर्विसेज ऑफ एटीएम बूथ, सर्विसेज ऑफ कस्टमर कॉल सेंटर्स, कस्टमर केयर सेंटर्स, क्लियर, सर्विसेज ऑफ मोबाइल चार्जर्स, ओपनिंग अप ऑफ एन एसटीडी बूथ। ये सारी सर्विसेज जो टेरिटरी सेक्टर में इंक्लूड हुई हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर? और जो टेरिटरी सेक्टर है इंडिया में, ये सबसे ज़्यादा इस समय इट इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इन द जीडीपी और इन द ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सबसे ज़्यादा बनाता है और कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की इकोनॉमी में। क्लियर? हम ये भी देखते हैं कि आज के सिनेरियो में, आज के समय में भी एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। आप इमेजिन कर लो कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ लोग बंद कर दे करना, खेती करना बंद कर दें, तो शहर में रहने वाले लोगों को सब्जियां कहाँ से मिलेंगी, खाने के लिए खाना कहाँ से मिलेगा, अनाज कहाँ से मिलेगा। और यदि शहर वाले लोग अपने प्रोडक्शन को गांव में लेकर के जाना बंद कर दें तो गांव वाले तो भूखों मर जाएंगे, ना तो उनको खाद मिलेगी, ना उनको मशीन्स मिलेगी, ना उनको टूल्स मिलेंगे। और इससे क्या होगा बेटा? इससे ये होगा कि इकोनॉमी पूरी तरीके से डैमेज और डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर है, ठीक है, प्रोड्यूसेस 3/4 ऑफ द प्रोड्यूस whereas they employ less than half of the people। 3/4 मतलब 75 प्रोडक्शन एक परसेंट का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो देखा जाए तो ये आधे से भी कम है इकोनॉमी का। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। देन बिकम ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली इसको पब्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। इट इज बीइंग ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें वर्कर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी होती है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेड लीव मिलती है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिलते हैं, HRA मिलता है, ठीक है, यहाँ तक कि ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर एक फिक्स टाइम के लिए काम करता है, उसके बाद वो काम नहीं करता है, उसका टाइम फिक्स होता है, ठीक है, उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसमें एम्प्लॉयज़ को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, जितने दिन वो काम पर आता है उतने दिन की उसे सैलरी, वेजेस मिलते हैं, सैलरी नहीं मिलती है। उसको कितने वेजेस मिल रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है, कितने दिन वो आया है, उसका कोई स्टैंडर्ड मेंटेनिंग रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग इन दिस सेक्टर एंड इस सेक्टर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि आकर के उनका प्रोटेक्शन करे, उनकी हेल्प करे और उनको अनइवेंटफुल सिचुएशन से बाहर निकाले, जैसे कि कंपनीज को या ऑर्गेनाइजेशंस को ये ऑर्डर करे, ये लॉ बनाए कि उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड। उनको HRA फैसिलिटी नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए कोई एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, ठीक है। तो दे आर बाउंड, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो जॉब इनसिक्योरिटी से परेशान हैं, हेल्थ से परेशान है क्योंकि कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, कोई HRA फैसिलिटी नहीं है, एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम वैसे तो पहले बात कर चुके हैं, आज हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक ब्रॉड लेवल पर बात करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़
ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। दिस इज इंपॉर्टेंट। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पब्लिक सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, बट द पर्पस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज जस्ट नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। पब्लिक सेक्टर बेसिकली गवर्नमेंट इसको ओन करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है, और गवर्नमेंट का ये उद्देश्य नहीं होता कि उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। उसका प्रॉफिट के साथ साथ एक ये भी मोटिव होता है, एक ये भी एम होता है कि उसके वर्कर्स की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, इंश्योरिटी हो, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिले, उनके फैमिलीज का बेटरमेंट हो, अपलिफ्टमेंट हो। इसलिए वो वर्कर अपने एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की फैमिली दोनों को सिक्योर करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज which are the primary responsibility of the government, और गवर्नमेंट में इनको अपलिफ्ट करने के लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करती है। जैसे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों की एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ट्रांसफ़र फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए भी ट्रांसफ़र अलाउंसेस दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ द असाइनमेंट, हियर आई हैव गिवन 4 क्वेश्चंस। राइट डाउन द 5 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको इस तरह से पूछा जा सकता है, राइट डाउन 5 फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कंसिडर्ड बेटर देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वही होगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेटा जॉब सिक्योरिटी होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यूनिट्स आर बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये अपने वर्कर्स को हेल्थ फैसिलिटी देती हैं, मेडिकल फैसिलिटी देती हैं, HRAs देती हैं, ट्रैवलिंग अलाउंसेस देती हैं, एक्सेट्रा। डिफाइन अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, कोई सैलरी का पेमेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, इंश्योरिटी नहीं होती है, कोई कैजुअल लीव नहीं होती है, कोई मेडिकल लीव नहीं होती है, कोई हाउसिंग अलाउंस नहीं होता है, कोई ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ एंड वाई आर ऑल दी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। वी हैव डिस्कस प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हम जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं इंडस्ट्रीज में एक्सेट्रा, उसको देख लेना। टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, we have discussed the importance. Write down at least 3 points and list some activities where government is responsible for spending for its development, जैसे कि पब्लिक सेक्टर हो गया। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। See you in next class tomorrow. God bless you. Thank you.